آپ کا 16th لیکچر ہے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے 6-7 آیات جو آپ کو میں نے بھیجی ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ آیت نمبر 60 سے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے منع کیا تھا ان کو، اور انہوں نے دین کو تبدیل کیا جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو کہا تھا، اس لفظ کو تبدیل کر کے انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا جو ان کا اپنا بنایا ہوا تھا. اسی چیز کو دین میں بدعت کہتے ہیں، اور بدعت کرنے والا ظالم اور فاسق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، جس طرح اللہ نے یہاں پر ذکر کیا آیا نمبر 59 میں. اور ابھی اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہود و نصارہ کی طرح، خاص طور پر یہودیوں کی طرح اس چیز سے بچیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی مانگا اللہ وحدہ لا شریک سے موسیٰ علیہ السلام نے. یہ استسقاء ہے، یہ باب استفعال ہے، اور جس طرح آپ جانتے ہیں وربس کے اندر جب فعل ماضی استفعال میں داخل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس مادے کو طلب کرنا. سقا کا مطلب ہوتا ہے پانی، تو استسقاء کا مطلب ہوتا ہے پانی مانگنا. جس طرح غافارہ کا مطلب ہوتا ہے معافی، بخشش، اور استغفارہ معافی، بس بخشش طلب کرنا، اسی سے ہے استغفار یعنی کہ معافی طلب کرنا. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، لی قومی ہی اپنی قوم کے لیے، یعنی کہ اپنی قوم کے لیے اللہ وحدہ لا شریک سے پانی مانگا. ظاہر ہے پانی دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ بارش کے نظام کو بیان کیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ بارش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مثال کے طور پر سورہ لقمان کی آخری آیت جو آیت نمبر 34 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الغیث، ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور اس طرح سورہ نوح کے اندر فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا. تو بارش کی کئی قسمیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فقلنا، تو ہم نے فرمایا اضرب، کہ اللہ نے حکم دیا اضرب مار، بھی عصاکا، اپنی لاٹھی جو تیری لاٹھی ہے، الحجر، اس پتھر پر. وہ جو پتھر ہے اس پر لاٹھی مار. فن فجرت من حسنت عشرت عینا، تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، اس مناسبت سے 12 چشمے وہاں سے پھوٹ پڑے. اور جن لوگوں نے وہاں جا کر دیکھا ہے، خاص طور پر تفسیر تفہیم القرآن میں صاحب تفہیم نے تفہیم القرآن بتا سکتے ہیں کس کی تفسیر ہے؟ عبدالعلی مودودی، جی ابوالعلا مودودی کی. جی جو تفہیم القرآن ہے ابو اعلیٰ مودودی کی رحمہ اللہ کی تفسیر ہے. اس کی خصوصیات میں کئی چیزیں ہیں، لیکن ایک خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے خود جا کر نا وہاں پر یہ تمام چیزیں دیکھی. جو قرآن مجید کے مقامات ہیں، مکانات ہیں جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے، انہوں نے کوشش کی وہاں خود جا کر دیکھنے کی. تو وہ لکھتے ہیں وہاں پر تفہیم القرآن میں کہ وہ چٹان ابھی وہاں پر موجود ہے، اور چشموں کے شگاف اس میں اب بھی پائے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ چشمے کے شگاف اس چٹان میں ابھی بھی موجود ہیں. تو 12 چشمے جو ہیں اس میں سے پھوٹ پڑے. اللہ فرماتا ہے قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے جان لیا، ہر قبیلے سے کل اناس، ہر قبیلے کا جو بھی آدمی تھا ان کو پتہ چل گیا. مشرب، مشرب کہتے ہیں اس میں ظرف کو. ظرف کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کا، یعنی کہ جہاں اس کام کرنے کی جگہ ہو. شاربہ یشرب سے مشرب، جس طرح داخل یدخل سے مدخل، مدخل کا مطلب ہوتا ہے انٹرنس. اور خارج یخرج سے مخرج، مخرج کا مطلب ہوتا ہے ایگزٹ. اگر آپ ہوٹلز میں جائیں یا ہاسپٹل میں جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے انٹرنس اور ایگزٹ. انٹرنس کا مطلب مدخل، اور ایگزٹ کا مطلب مخرج. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر آدمی نے جان لیا اپنے پینے کی جگہ کو. اچھا، جس طرح ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے باہر فلیٹس لگائی ہوتی ہیں، گھر کے باہر فلانے کا گھر ہے، یا کلاس رومز کے باہر لگی ہوتی ہیں 9 کلاس کا یا 10 کلاس کا ہے. تو اس طرح ہی وہاں پر بھی آدمی کو پتہ چل گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہمارا مشرب کون ہے. یا آپ وہ سمجھ سکتے ہیں جس طرح NIC کارڈ بنواتے ہوئے آپ ٹوکن کے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرا ٹوکن آ گیا. واضح ہو گیا جی؟
जी क्लास वाजे होगी हाँ बात। जी सर। जी सर सर, जी सर, क्लियर चले, है। अल्लाह जी फरमाता सर है वाजिब। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है खाने का भी और पीने का भी। इसमें बड़ी हिकमत है। खाना भी आपके लिए हलाल है, पीना भी आपके लिए हलाल है। और अल्लाह ताला ने आपके लिए जो कुछ भी है वो आपके लिए बनाया है। खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन, जो भी हमने जमीन में है वो तुम्हारे लिए बनाया है। तो इसका मतलब है इस्लाम ऐसा दीन नहीं है जो दुनिया को छुड़वाने वाला दीन है, बल्कि इस्लाम एक ऐसा दीन है कि जो खाने और पीने का हुक्म भी देता है। लेकिन खाने और पीने का हुक्म देने के साथ साथ बड़ी सीधी सी बात है, तरह आप भी हर चीज को एंड करते हैं और हर चीज को खत्म करते हैं, और उसके लिए आपने एक लिमिट रखी हुई है। आपके फंक्शन खत्म हो जाते हैं, आपके क्लास के अंदर जो टाइम है वो खत्म होता है। इस तरह आप कई फंक्शन हैं, कई चीजें जो आप खत्म कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह ही अल्लाह ताला ने लिमिट्स बना दी हैं। फरमाया कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाना भी है पीना भी है लेकिन तुसरिफू यानी कि इसराफ नहीं करना। इसराफ से मुराद है उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो जाए, और तुम आखिरत के तस्वुर को जहन में रखने की बजाय दुनिया की होकर रह जाओ। तो ऐसे खाने पीने से अल्लाह ने मना किया है। खाना भी जायज है, पीना भी जायज है, और लेकिन तुसरिफू यानी कि ला तुसरिफू का मतलब इसराफ नहीं करना। खाओ पियो मिन रिस्क लाही, अल्लाह ताला की रिजक से। आप समझ, जब आदमी खाता और पीता है तो किस लिए खाता और पीता है? कि उसको ताकत मिले। आप जानते हैं कि बाज खाने ताकत वाले हैं, बाज मशरूब ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे बादामों का शरबत हो गया, मिल्क शेक हो गया, इस तरह कई चीजें हैं। खाने पीने के अंदर भी आपको पता है आजकल मछली का बहुत जोर है। सर्दी के अंदर मछली का गोश्त जरा गर्म होता है और जूद हजम होता है, इसलिए लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। तो अब खाना भी है पीना भी है, इससे ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है। लेकिन ताकत और कुव्वत ये ना काम करवाए जो आगे अल्लाह फरमाता है वला तासौ फिल अर्ज़ि मुफसिदीन, जमीन में फसादी बन के ना फिर। क्योंकि इन अल्लाह ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फसाद को पसंद नहीं करता, और अल्लाह ताला ना ही फसाद करने वालों को पसंद करता है। इसका मतलब है खाना और पीना इस नीयत से कि मैं बदमाशी करूं, लोगों को डराऊं धमकाऊं, ये बिल्कुल गलत है। कुरान कुरान सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल मना है। खाना पीना इसलिए है कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और अल्लाह ताला के शुक्रगुजार बंदे बन के रह सके। इसलिए खाना और पीना अल्लाह ने रखा है। खाना भी है और पीना भी है अल्लाह ताला की रिज़्क से। और कोई भी खाने पीने की चीज जो अल्लाह ने हलाल की हुई है उसको कोई भी हराम नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने पहली कौमों का जिक्र करते हुए फरमाया कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाह अल्लती अखरज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क। भला ये बताओ कि जो अल्लाह ताला ने पाकीज़ा चीजें हलाल की हैं, इसे कौन हराम करने वाले हैं? कोई हराम नहीं कर सकता। तो जमीन में फसाद नहीं करना, इसका मतलब है आपका खाना पीना इस नियत से होना चाहिए कि मैं खाने खाकर, पानी पीकर या कोई और मशरूब पीकर अल्लाह की इबादत करूंगा, अल्लाह की इबादत करूंगी, और अल्लाह ताला की शुक्रगुजार बन के रहूंगी या रहूंगा। तो ये है जी खाने पीने का वो मकसद जो अल्लाह ने यहाँ पर बयान किया है, और फसाद नहीं करना। आगे अल्लाह ताला फरमाता है अवाई स्कूल तुम या मूसा। अब पीछे हमने पढ़ा कि इन्हें मन और सलवा मिलता था, मन और सलवा। और इंसान की एक फितरत है कि वो एक चीज पे राजी नहीं होता। तो फरमाया वाई स्कूल तुम, जब तुमने कहा किससे, या मूसा है मूसा अलैहिस्सलाम, नल नस्बिरा, हर चीज हम सबर नहीं करेंगे। तो फरमाते हैं हर चीज हम सबर नहीं करेंगे अला तामिन वाहिदिन, एक खाने पर। तो मन और सलवा को एक खाना इसलिए करार दिया है कि रोजाना वही चीज खाने को मिलती थी, इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। और आपको पता है मन और सलवा, मन जो है वो सहरा की वही सब्जियां, और जो सलवा है वो परिंदों का गोश्त, खासतौर पर बटेर का गोश्त। ये मन और सलवा उनको मिला करता था, और उस दौर में सहरा के अंदर ये चीजें मौजूद थी, अल्लाह ताला की नेमत थी, और अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये बेहतरीन ग़िज़ा है जो अल्लाह ताला ने फराहम की हुई थी। अब ये होता है एहसान फरामोशी कि अल्लाह वहदहू ला शरीक दे रहा है, लेकिन वो अल्लाह ताला की अता पर राजी नहीं है। तो फरमाया फत उलाना। तो अब इससे एक फायदा भी समझ लीजिएगा, वो ये है कि जब आपको खाना मिलता है बैठे बिठाए, तो आप आज़ाद होते हैं, फारिग होते हैं, और आपको पता है इस वक्त हमारा बहुत सारा वक्त किसमें ज़ाया होता है? घर वालों के लिए पैसे और रिज़्क कमाने में। क्यों जी, ठीक है या नहीं? सर हाँ जी। ऐसे ही है। यहाँ पे खवातीन मौजूद हैं, कुछ मर्द हज़रात भी होंगे। आपको पता है कि मर्द हज़रात निकलते हैं बाहर कमाने के लिए, खवातीन घर पे लगी रहती हैं चूल्हे के आगे, कभी क्या पका रही हैं, कभी ये पका रही हैं। तो काफी सारा वक्त उनका ना इस काम में सर्फ हो जाता है। कोई शक नहीं है कि जब आप अपने घर वालों के लिए पकाते हैं या कमाते हैं तो अल्लाह ताला आपको बहुत बड़े स्वाब से नवाजता है। लेकिन आपको ये मानना पड़ता है कि वक्त ज़ाया होता है, फिर आदमी थक जाता है और सो जाता है।
अब इनको फायदा ये था कि आज़ादी मिल चुकी थी, फरागत हासिल थी, ये इल्म भी हासिल कर सकते थे, जिहाद की ट्रेनिंग भी ले सकते थे, लेकिन इन्होंने इस नेमत की कदर नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमताने, दो नेमतें, मगबूनुन फीहिमा कसीरुम मिनन नास, दो नेमतें ऐसी हैं जिसके बारे में लोग, अक्सर लोग जो हैं वो गाफिल हैं, उनको पता ही नहीं कि नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं। अस्सिहतु वल फरागु, रवाहुल बुखारी, सही बुखारी की हदीस है कि दो नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं जिनके बारे में लोग बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं कि वो नेमतें भी हमें हासिल हैं, एक सेहत और एक फरागत, कि आदमी सेहतमंद हो और उसके बाद फारिग वक्त हो। तो ये बहुत बड़ी नेमतें हैं कि अल्लाह ताला सेहत दे और फारिग वक्त हो, तो आदमी दीन सीख सकता है, वर्जिश कर सकता है, काम कर सकता है, रिश्तेदारों से मिल सकता है, गरीबों के साथ अच्छा सलूक कर सकता है, रिश्तेदारों से मिलने जा सकता है, और भी काम कर सकता है। तो जब आपके पास सेहत और फरागत ना हो, अल्लाह ताला ना करे, तो आपको पता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है और फरागत कितनी बड़ी नेमत है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इनके ज़हन में चूंकि वही चीजें थी, लिहाजा अब इन्होंने वही तकाजे शुरू कर दिए जिसके गुलामी में आदी थे। क्योंकि जब ये गुलाम थे तो आपको पता है फिरौन इनसे काम करवाता था, बेगार लेता था, इनसे लेबर लेता था, जिसे आजकल हम चाइल्ड लेबर कहते हैं या फोर्स लेबर कहते हैं। अब ये उसी की आदी से, लिहाजा क्या कहने लगे, फदुलाना। इससे एक और बात वाज़ेह होती है कि आदमी को अपने आप को बुरी चीज का आदी नहीं बनाना चाहिए। इस चीज के आदी बन चुके थे तो कहने लगे, फदुलाना और रब्बा का, बजाय दीन सीखने के, बजाय जिहाद करने के, बजाय अल्लाह ताला की शरीयत और इल्म हासिल करने के, क्या करने लगे, उन चीजों का तकाजा जिसके वो गुलामी में आदी थी। फदुलाना रब्बा का, तो अपने रब से तो दुआ कर, इसलिए युखरिज लना, कि वो रब निकाले हमारे लिए, मिम्मा तुंबितुल अर्जु, जमीन जो उगाती है। ये अम्बता युम्बित को मतलब होता है उगाना, इसी से नबातात का लफ्ज है। वेजिटेबल्स जो जमीन से निकलती हैं, यू नो दैट, वेजिटेबल्स निकलती हैं, फ्रूट्स निकलते हैं, और अल्लाह वाला शरीक की सैकड़ों चीजें हैं, अनगिनत चीजें हैं। अगर आप गंदम को शुमार कर लें, गंदम के साथ जो है कई चीजें हैं, खुद रो झाड़ियां खुद से खुद पैदा हो जाती हैं। तो अल्लाह फरमाता है कि इन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि जमीन जो उगाती है ना, अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे लिए जमीन से उगाए और निकाले, मिम बकलिहा। बकल कहते हैं बकाला, बकाला कहते हैं ये सब्जी फरोश को, तो बकल से मुराद है ये जो सब्जी है आपकी। वकिसाई हा, और ये जो ककड़ी खीरा टाइप चीज है। वह फूमी हा, और गंदम, ये हा की जमीर अर्ज की तरफ जा रही है। इंग्लिश में होते प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस को अरबी में कहा जाता है जमीर। तो ये जमीर है हा, हु और हा। हु होती है वाहिद मुजक्कर के लिए, हा होती है वाहिद मुअन्नस के लिए, जो कि अर्ज का लफ्ज मुअन्नस है अरबी जुबान में, लिहाजा ये हा आ रहा है। मिन बकलिहा, जमीन की सब्जियां और तरकारियां, जमीन की तरकारियां, और वह किस्साई है उसकी ककड़ी, खीरा और इस तरह की चीज, वह फूमी हा और गंदम, वह आदसी हा और मसूर, ये जो मसर आप खाते हैं, मसर में सारी चीजें आ जाती हैं, लेंटिल्स भी आ जाते हैं, मसूर की दाल भी आ जाती है, और भी दालें हम इस्तेमाल करते हैं। वह बसली है और प्याज, ये पांच चीजें उन्होंने खास तौर पर जिक्र की कि अल्लाह ताला हमारे लिए ये उगवाए, जमीन को हुक्म दे। तो आपको पता है जमीन को अल्लाह ताला हुक्म देता है और जमीन उसके जरिए से आपके लिए चीजें निकालती है। आपको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया हुआ है, फलियंजुर इंसानु इला ताम, इंसान को चाहिए कि वो अपने खाने को देखे। अन्ना सबबनल मा सब्बा, हमने आसमान से पानी बरसाया, सुम्मा शककनल अर्ज़ शक्का, फिर हमने जमीन के मसाम खोल दिए, पोर्स खोल दिए। शककनल अर्ज़ शक्का फअंबतना फीहा हब्बा व इनबा व कस्बा व ज़ैतूना व नखला व हदाइका गुल्बा व फाकिहतन व अब्बा मताअल लकुम व लिअनआमिकुम। फरमाइए तमाम चीजें, खाने की चीजें, पीने की चीजें, सैलड की चीजें, और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जैसे मुख्तलिफ किस्म के सैलड मशहूर हैं, तो सैलड किससे बनता है जी? Vegetables. सलाद वगैरह बनता है ना। जी सलाद के अंदर आपको तो प्याज डाले जाते हैं, वो जो बंद गोभी है वो डाली जाती है, खीरे उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और उसके साथ वो शिमला मिर्च इस्तेमाल होती है, टमाटर बाद लोग इस्तेमाल करते हैं, मूलियां भी इस्तेमाल करते हैं, गाजरें भी इस्तेमाल करते हैं। कितनी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। फबी यही आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, फबी यही आलाई रब्बी का ततमारा, ये भी लफ्ज कुरान मजीद में मौजूद है कि कौन कौन सी नेमतों पे शक करोगे, अल्लाह ताला ने हर चीज दी हुई है। अब ये तमाम चीजें इसके मुकाबले में उधर क्या मिल रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से सब्जी भी मिल रही है, अल्लाह ताला की तरफ से गोश्त भी बेहतरीन मिल रहा है। और मैंने आपको पिछले भी क्लास में कहा था कि हम में से बहुत पैसा होने के बावजूद भी लोग जो हैं वो जंगली परिंदों का गोश्त नहीं खा सकते, क्योंकि महंगा बहुत ज्यादा है। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल सर।
ये आपको पता है सेहत के लिहाज से जो जंगली परिंदों का गोश्त है, ये हुकामा जो हकीम होते हैं जिस्म की ताकत के लिए इसकी यखनी पीने की तरकीब देते हैं। यदि आप चिड़ों की यखनी यखनी पिए या मुर्गापियों की पिए या सील मुर्गे की पिए, अब सील मुर्गे की यखनी पीने के लिए बंदा जाए तो उसकी अपनी मतलब यखनी निकल जाती है, इतना काम करना पड़ता है उसको कि फिर जाके सील मुर्गा 6-7 हज़ार रुपए का एक सील मुर्गा है। क्या ख्याल है जी? सर वो जो लड़ाई वाला मुर्गा होता है। जी जी, वही लड़ाई वाला मुर्गा, उसके अंदर ताकत होती है ना। तो आपको पता है ये कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। अगर कोई आदमी कमजोर है, मतलब बीमार हुआ, उसके बाद उसने अपनी ताकत को रिगेन करना है, रिहेबिलिटेट करना है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि वो देसी मुर्गा जो सील मुर्गा होता है उसकी वो यखनी पिए। अब यखनी पी सकते हैं आप इतने महंगे मुर्गे की? हाँ जी। नहीं सर। हाँ, तो बाद वो हकीम साहब क्या छोड़ते हैं, वो आगे बेचारा सील मुर्गे की तस्वीर देख कर ना खुश होता रहता है, बस इतना ही कर सकता है वो। हाँ जी। अच्छा जी, फरमाया कौला, तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे तस्तब्दिलूना, तुम बदलना चाहते हो, अल्लाजी उस चीज को, हुआ अदना जो घटिया है, बिल्लाजी हुआ खैर उस चीज के साथ जो बेहतर है। यानी कि बेहतर चीज को घटिया चीज के साथ बदलना। अब तुम्हें बाजार जाना पड़ेगा, औजार लेने पड़ेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी के अंदर ये बात कही है आपने ना। आपके सहाबी अबू उमामा बाहिली की हदीस है, कि मैं दिखा भी देता हूँ नीचे आपको। वो रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप अलैहिस्सलाम गुजरे, तो आपने यानी कि अबू मामा ने ना एक खेती बाड़ी का औजार देखा, तो फरमाया मैंने रसूलुल्लाह से सुना, आपने फरमाया कि ला यदखुलु हाज़ा बैता कौमिन, ये जो चीज है ये किसी कौम के घर में दाखिल होती है, मगर ये कि अल्लाह ताला उसको उसके अंदर जिल्लत को दाखिल कर देता है। मतलब ये है कि खेती बाड़ी को ये हराम नहीं कहा, बल्कि ये है कि खेती बाड़ी में आदमी पड़ जाए, इसी काम में खो जाए, जिहाद को तर्क कर दे। तो ये नीचे उन्होंने बाब भी है, बाबू मा युहज़रु मिन अवाकिबिल इश्तिगाली बियारत ज़री और मुजावती हद्दी अल्लज़ी उमिर बी, यानी खेती बाड़ी के औजारों में मशगूल हो जाना या उस हद से तजावज करना जिस का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इससे आगे नहीं जाना। अब अल्लाह ताला क्या दे रहा है? बेहतरीन चीज, और ये क्या चाह रहे हैं? उससे घटिया चीज। इसी तरह कुरान मजीद के शुरू में आपने पढ़ा है कि बाद लोग जलालत ले लेते हैं, गुमराही ले लेते हैं हदायत देकर। अब आप इसको अगर टेक्निकली समझना चाहें तो मेटल्स के बारे में आप जानते हैं, मेटल्स क्या होती है जी? मेटल, जी मेटल्स का पता है जी? जी सर, ये धातें होती हैं जो पहाड़ों के अंदर से निकलती हैं अक्सर, और लोहा, लोहा हो से गया, बनती। हाँ जी। ये तांबा हो गया, ठीक है जी। अच्छा, अब आप बताएं कि लोहा भी धात है और सोना भी धात है, चांदी भी धात है, मेटल्स है, आप किसको प्रेफर करेंगे? सर सोने को। को। सोने को? उसकी वजह महंगा है। तो अगर आदमी 1 किलो सोना या 1 तोला सोना, 1 तोला सोना देकर 10 किलो लोहा ले ले, तो क्या ख्याल है, उसने अच्छा सौदा किया है कि बुरा सौदा किया है? बुरा। वजह बुरा उसकी सर। क्या है? सर क्योंकि उसने एक कमतर चीज को ले ली जिसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है। उसने समझा कि वेट ज्यादा है। तो आपको पता है ये बहुत अहम बात है समझने के लिए, वेट का ज्यादा हो जाना ये शर्त नहीं है कि वो चीज कीमत में भी ज्यादा हो गई है। एग्री जी? जी सर। अब देखिए, अभी आप लेटेस्ट देखिए, इस वक्त अरूज पर है काम ना, ये किसका नाम है, ड्राई फ्रूट्स का। अब ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत महंगे हैं, अब 6,000 किलो, 5,000 रुपए किलो, 8,000 रुपए किलो, 7,000 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो अगर आपने इंजीर लेनी हो, और खास तौर पे वो तमाम फल बहुत महंगे हैं जिनका कुरान मजीद में जिक्र है, खास तौर पे इंजीर बहुत महंगी है, बेहतरीन चीज है आपकी सेहत के लिए, लेकिन वो 4,000 रुपए किलो है, 4,500 रुपए किलो है, 5,000 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। अब सवाल बनता है कि इसके मुकाबले में कई चीज ऐसी जो वजन में ज्यादा है लेकिन कीमत में बहुत हल्की है। लिहाजा ये समझ लेना, आज का बहुत बड़ा फितना है कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी। वेट ज्यादा है लिहाजा चीज कीमती है, तो इस चीज को ना जेहन से निकाल दें। हम भी, मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालें। चीज का वेट में ज्यादा होना शर्त नहीं है कि वो कीमत में भी ज्यादा होगी। ठीक है जी, समझ आ गई बात की जी? जी किसी सर। काम के किसी काम को ज्यादा लोगों का करना ये दलील नहीं होगी वो काम ठीक है। भाई ये ज़हन में रख लें, क्योंकि हो सकता है वो काम गलत हो, लोग ज्यादा कर रहे हैं तो क्या हुआ? अल्लाह यस्तविल खबीस वला तय्यिब व तय्यिब वलाउ आजब का कसरतुल खबीस, फरमाया तय्यब चीज और पाकीज़ा चीज जो है ना वो खबीस चीज बराबर नहीं है। अगर से तुझे कसरत की, यानी कि खबीस चीज की कसरत हैरान क्यों ना करते कि इतनी ज्यादा लोग कर रहे हैं, इतनी ज्यादा लोग कर रहे हैं।
تو لہٰذا ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ شادی بیاہ کے رسومات دیکھ لیں، غمی کے رسومات دیکھ لیں، یہ بے پردگی والی چیزیں دیکھ لیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، 90% لوگ اس میں انوالو ہیں، تو 90% لوگوں کا یا اس سے بھی زیادہ لوگوں کا انوالو ہو جانا، اس کی چیز حلال نہیں ہوگی، غلط کی غلطی رہے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو گھٹیا چیز لے رہے ہیں اور اعلیٰ چیز کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہی بھی تم مصرن، اب تم نا کسی شہر میں جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بعض لوگ اس مصر سے مراد لیتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام والا مصر یا فرعون والا مصر، بہرحال یہ ویسے کسی شہر کا ہی نام ہے کیونکہ نکرہ ہے، اہ بھی تو مصرن، شہر میں جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، تو بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے سوال کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ شہر میں چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے ما جو تم سوال کر رہے ہو مل جائے گا۔ اور فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ تو یہ ان کی ہسٹری بہت پرانی ہے کہ یہودی جو ہے وہ کبھی بھی دنیا میں چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ یہ در بدر ٹھوکرے کھاتے رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ذلیل ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر نکلے ہیں، پھر ذلیل ہوئے ہیں، پھر نکلے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پوری دنیا میں فتنہ اور فساد نہ صرف پھیلایا ہے لیکن خود بھی یہ سکون سے نہیں رہے، اور ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں یہ فساد اور فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ بحبل من اللہ او بحبل من الناس، یعنی یہ یا تو اللہ تعالیٰ کی بات مان لیں تب ان کو سکون ملے گا، یا اگر یہ وقتی طور پر سکون تلاش کر لیتے ہیں تو اس لیے کہ بحبل من الناس، کہ کچھ لوگ ان کے اتحادی بن جاتے ہیں، جس طرح آج کل امریکہ ان کا اتحادی بنا ہوا ہے اسرائیل کا، اور امریکہ کے ایما پر اور اس کی شے کے اوپر اسرائیل کو بدماشی کر رہا ہے فلسطین میں۔ تو بہرحال وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی، وباؤ بغضب من اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں آ گئے۔ اس سے آپ کو وہ آیت یاد آ گئی ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، تو وہ قوم جو مغضوب ہے، جس پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ بلا شک و شبہ یہودی قوم ہے۔ اور فرمایا ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ کانوا یکفرون، یہ کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے، بیاات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، یعنی کہ وجہ کیا بنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، بغیر الحق، بغیر حق کے، یعنی کہ یہ اتنی بدبخت قوم ہے کہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا ہے، اور انبیاء کا قتل علیہم الصلاۃ والسلام، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کا قتل نہیں ہوا، لیکن یہ آیات اس کے اوپر وضاحت کر دیتی ہیں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر آپ آگے پڑھیں گے 92 میں۔ جی کوشچن ہے کوئی؟ سر دیکھیں، وہ تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے، آپ نے بتایا تھا جب ہم لوگوں نے وہ پڑھا تھا سورۃ الفاتحہ کے اندر، لیکن سر یہ بھی تو یعنی کہ کھلم کھلا شیطان کی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے پھر چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اگر گوگل پہ سرچ کرتے ہیں سب سے بیسٹ ڈائٹ یعنی کہ جو آرگینک ہے، اس میں سب سے نمبر 1 پہ جوئش ہے، اور اگر آپ سب سے یعنی کہ سسپیکٹفل پیپر میں آتے ہو تو اس میں بھی نمبر 1 پہ یہی لوگ آ رہے ہیں، تو پھر بھی یعنی کہ یہ بھی کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان سے اپنا یعنی کہ رحمتیں کر رہے ہیں ایسی، یعنی کہ کیا یعنی کہ ان کے اوپر تو لعنت پڑی ہوئی ہے، تو پھر یہ کیوں اتنے زیادہ کامیاب؟ اچھا، اس میں جو مجھے آپ کی بات سمجھ آئی نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نا، اللہ رحمان اور رحیم ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک چیز نا دو آدمیوں کے لیے ڈفرینٹ ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مہلت دیتا ہے، ایمان والوں کو اس مہلت کو کہتے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ اللہ مہلت دیتا ہے اور آپ توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک مہلت ہوتی ہے استدراج، استدراج کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، وہ ظلم کرتا رہتا ہے اور اللہ اس کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے جو آخرت کا عقیدہ ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا لمون کما تعلمون و ترجون من اللہ ما لا یرجون، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے جس طرح ان کو پہنچتی ہے، کافروں کو، یہودیوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، مگر و ترجون من اللہ ما لا یرجون، تم اللہ تعالیٰ سے جو امید رکھتے ہو نا، ان کو کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا، ہماری امید کیا ہے کہ آج اگر ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں یا ہم ہو جائیں یا کوئی اور آدمی مسلمان ہو جائے، شہید مظلوم مارا جائے، شہید ہو جائے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا شہید ہونا؟ ذرا سمجھ کے بتائیے گا، اس کا شہید ہونا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کر کے جنت میں وہ چیزیں دینی ہیں جس کا اس کو وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا؟ جی
जी सर, ये तो है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हिसाब करना है तब भी तो सबसे पहले इन्हीं को बुलाएंगे शुहदा को। यानी कि दूसरे लफ्जों में ना, ये जो अल्लाह ताला इनको मोहलत देता है या इनको इस्तिदराज करता है, उसकी वजह है कि अल्लाह ताला फिर गिरफ्त बड़ी सख्त है उसकी, अल्लाह वहदहु ला शरीक की। और दूसरे नंबर पर यहूदियों का जो वतीरा रहा है कुरान और सुन्नत की रोशनी में, जो कुरान और सुन्नत के अंदर चीजें मौजूद हैं, उसके मुताबिक ये है कि इन्होंने ये ज़राए अबलाग पे कब्जा करते हैं, अल्लाह ताला के दीन को बिगाड़ते हैं, खबरों को तरोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, मुसलमानों को बुरा भला गर्दानते हैं और लोगों से कहते हैं कि इनको बुरा समझो, और अपने आप को ये बड़ा साफ और जिसे कहते हैं ना पाकीज़ा शो करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अल्लाह फरमाता है कि इन्होंने नबियों तक को कत्ल किया हुआ है। ये आयत नंबर 92 में आप पढ़ेंगे, फरमाया कुल फलिम तक़तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्ल, तो ये पूछो इनसे कि इन्होंने पहले नबियों को क्यों कत्ल किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया हुआ है कि अशद्दुन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती और रजुलुन क़तलहु नबियुन औ क़तल नबिय्यन व इमामु ज़लालतिन व मुमस्सिलुम मिनल मुमस्सिलीन, ये क़यामत वाले दिन सबसे सख्त अज़ाब वाला वो आदमी है जिसे किसी ने नबी ने कत्ल किया होगा या उसने किसी नबी को कत्ल किया। यानी कि बदतरीन आदमी वो है जिसको किसी नबी ने कत्ल किया, क्योंकि आपको पता है नबी इंतहाई शफकत करने वाले, रहम करने वाले होते हैं, और अगर वो किसी को कत्ल करे तो इसका मतलब वो इंतहाई बदबख्त शख्स था जो नबी के हाथों कत्ल हुआ है, और वो भी इंतहाई बदबख्त शख्स है जो किसी नौजुबिल्ला नबी को कत्ल कर दे। अभी भी आप जानते हैं कि देर आर 5 बाइबल्स, 5 बाइबल्स तो इसके अंदर मौजूद हैं, जिसको आप अहदनामा कदीम कहते हैं, दी ओल्ड टेस्टामेंट। और बाकी कुतुब जो है वो न्यू टेस्टामेंट में मौजूद है। न्यू टेस्टामेंट में है वो ओल्ड भी मौजूद है, किताब पैदाइश, किताब इस्तिस्ना, किताब खुरूज, किताब एदाद और किताब अखबार, ये सारी मौजूद है। उसके अंदर जो है ना, उसके अंदर भी, बाइबल के अंदर भी ज़करिया अलैहिस्सलाम के कत्ल को की रिवायत मौजूद है, बाबे तो जी किताब तवारीख में। इस तरह ये इंजील मरकस के अंदर यही अलैहिस्सलाम का कत्ल मौजूद है, यानी कि ये वो उसके अंदर भी मौजूद है। तो अल्लाह ताला फरमाता है ज़ालिका बिमा असौ व कानू यातदून, ये इस वजह से है कि जो इन्होंने नाफरमानी की, व कानू यातदून, और ये हाथ से गुजरते थे। इसमें ज़िम्नन ये बात भी जिक्र कर ले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो आप अलैहिस्सलाम को, आपको पता है, जहर दिया गया था। याद है आपको जहर देने वाला कौन था? कौन थी जहर देने वाली? वो जो जहर देने वाली औरत थी वो भी यहूदियों से ताल्लुक रखती थी। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि वो मुझे कहा आपने कि मैं उस खाने की तकलीफ महसूस करता रहा जो खैबर में मुझे खिलाया गया था ना, जहर आलूद खाना। तो अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि वो जो जहर है वो मेरे दिल के ऊपर असर कर रहा है। अल्लाह अकबर। अंदाजा लगाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इन्होंने जहर देने की मुकम्मल कोशिश की है। तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है, इन लजीना आमनु, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लजीना हादू, और वो लोग जो यहूदी बने, वन नसारा, और वो जो ईसाई थे, वसाबीना, और वो जो साबी थे। अब ये 4 गिरोहों का जिक्र किया है। अब अल्लाह ताला फरमाता है मन आमना बिल्लाहि। अब ये तो आप पहले इसको समझ लें, आमन वो तो हो गए ईमान वाले, हादू हो गए जो यहूदी थे, वन नसारा जो नसरानी थे, वो साबीना, साबी वो शख्स है जो एक दीन से दूसरे दीन की तरफ चला जाए। तो जो ये ऐसे लोग थे जो पहले आसमानी दीन पर थे, तो आसमानी दीन को छोड़ने के बाद इन्होंने दूसरा दीन इख्तियार कर लिया, सितारों को, सूरज को पूजना शुरू कर दिया, तो ऐसे लोगों को साबी कहा जाता है। अब ये आयत पहले समझने वाली है आप। अल्लाह ने यहाँ 4 गिरोह जिक्र किए हैं, ईमान वाला, यहूदी, ईसाई और साबी। फरमाया मन आमन बिल्लाही, जो भी ईमान लाएगा अल्लाह ताला पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। यानी कि जो शख्स भी अल्लाह ताला पर ईमान ले आएगा, यौम आखिर पर ईमान ले आएगा, वह आमिला स्वालिहन, और नेक अमल करेगा, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो ना वो खौफ में मुब्तला होंगे, ना ही वो गमजदा होंगे। अच्छा, मैं दोबारा आयत पे वापस आता हूँ, और आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होगा, अक्सर लोगों के ज़हन में एक सवाल पैदा हो जाता है, वो ये है कि यहाँ अल्लाह जिक्र कर रहा है कि ईमान वाले हों, यहूदी हों, ईसाई हों, साबी हों, जो कोई भी हो, जो अल्लाह पर ईमान लाएगा तो नेकी का अमल करेगा, जन्नती बन जाएगा, खौफ और गमज़दा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या, यहूदी भी जन्नत में जाएंगे, ईसाई भी जन्नत में जाएंगे, साबी भी जन्नत में जाएंगे? ये उनके ज़हन में इश्काल पैदा होता है। वाजे हुआ जी? बिल्कुल सर, क्योंकि अच्छा सर अब वो जो अरबी थे वो भी तो करते थे ना।
तो जी ईद पे ईमान, अल्लाह के ऊपर ईमान रखते थे, लेकिन बुतों को यानी कि जरिया बनाते थे। ये भी आपने स्टार्ट में बताया था। अच्छा, अब इसको समझने के ये है कि देखिए, एक होता है स्टेप वाइज। आप मुझे बताइए कि ये कोरोना जो है, कोरोना से तो वाकिफ है ना आप? मैंने आपसे कहा कोविड-19 जिसे कोरोना कहते हैं, उससे तो वाकिफ है ना आप? जी जी सर। सर। जी अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वो जो कोरोना या इस बीमारी से पहले वाले लोग जो फौत हुए, इस बीमारी का पता ही नहीं था किसी को, उस बीमारी से पहले वाले लोग जो फौत हुए, जो कोरोना की एपिडेमिक से पहले दुनिया में, और ये उनको पता ही नहीं कोरोना का, उन्होंने मास्क नहीं लगाए, एसओपीज को फॉलो नहीं किया, क्या वजह है? सर, उनको पता ही नहीं था कि ये कोरोना है और इसमें क्या क्या करने चाहिए। आप यही कहेंगे ना सर, वो तो पहले गुजर चुके हैं, उस वक्त तो कोरोना था ही नहीं, यही कहेंगे ना आप? तो उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता एसओपीज का या मास्क लगाने का या इस तरह की चीजें का। आप बताइए, आपको मास्क लगाने पर क्यों मजबूर किया गया और आपको एसओपीज क्यों फॉलो करना पड़ी? सर, इसलिए कि सर कोरोना अवेयरनेस आ गई थी। उस वक्त वो बीमारी थी, उससे बचने के लिए फिर वो सारी एसओपीज हमने फॉलो की। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, दो किस्म के लोग हो गए। एक वो है जो कोरोना बीमारी से पहले, एसओपीज से पहले, मास्क लगाने से पहले फौत हो गए, उस वक्त कोरोना का वजूद ही नहीं था। तो लिहाजा उन लोगों के बारे में ये समझना कि वो एसओपीज को फॉलो करें या मास्क लगाएं, बिल्कुल बेमाना बात है। माना क्या बना कि वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले ईमान वाले थे, और अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, या वो ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स थे, या वो किसी भी नबी के फॉलोअर रहे हैं उस दौर में, पहले दौर में, उस दौर के लिहाज बात हो रही कि उस दौर में, यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद थे और जो लोग मूसा अलैहिस्सलाम पे सही ईमान रखने वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पर सही ईमान रखने वाले, ये लोग उस वक्त के, वो उनमें से जो भी शख्स ईमान वाला होगा, नेकी के अमल उसने किए होंगे, इंशाल्लाह वो भी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और अब का मसला क्या है? अब का मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, आप अलैहिस्सलाम की बशारत बाइबल में मौजूद है। लिहाजा आज के लोगों को आप बताइए किसको फॉलो करना पड़ेगा? बताइए जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब को। ये फर्क है, यानी कि जो पहले लोग नबी अलैहि इस्लाम से पहले गुजर चुके और वो ईमान वाले थे, इंशाल्लाह वो भी जन्नती होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन आज चूंकि नबी अलैहि इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं, आपकी बेसत, आपकी गवाही मूसा अलैहि इस्लाम से भी मौजूद है, ईसा अलैहि इस्लाम से भी मौजूद है, हत्ता कि सहाबाए कराम रजी अल्लाह अन्हुम की गवाहियां मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने सूरह फतह के आखिर में जिक्र किया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम ज़ालिका मसलहुम फित तौराती व मसलहुम फिल इंजील कज़री नखरज शतहु फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़ फ़स्तवा अला सूक़िही युजिबु ज़ुर्रा लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। ये सूरह फतह की आखिरी आयत है। इसका मतलब है कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि सारे लोग इस वक्त ईमान वाले बन जाएंगे। इस वक्त जो यहूदी है, इस वक्त जो ईसाई है, इस वक्त जो किसी मजहब को फॉलो करने वाला है, बताइए उसको किसको फॉलो करना पड़ेगा? हाँ जी, किसको फॉलो करना पड़ेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ, नबी मिलत अलैहिस्सलाम। मोहम्मदी। जी। जो इसका बाद लोग इससे ना गलत नतीजा निकाल लेते हैं, वो कहते हैं कि आजकल के दौर में भी जो ईसाई है वो ईसाई रहे, जो यहूदी है वो यहूदी रहे। ये वही वाली साबुक जो मैंने आपको कोविड-19 या कोरोना की एग्जांपल दी है। आज के दौर में कोरोना की एसओपीज फॉलो करनी पड़ेगी क्योंकि मौजूद है, आपने की है। तो बिल्कुल ऐसे ही नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत मौजूद है, क़यामत तक उसने रहना है। लिहाजा आज किसी यहूदी, ईसाई या किसी और मजहब के मानने वाले के लिए कोई चारा नहीं कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करे। और पैरवी करने के लिए कई अकली दलाइल भी है। पैरवी इसलिए भी की जाएगी कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताइए, मूसा अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम का, ये बाकी नबियों का इनकार किया है? बताएं जी। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं किया ना, बल्कि आपने तो उनकी इज्जत बढ़ाई है। आपने उनको कहा ये मेरे भाई हैं। ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत आपने करवाई है, मूसा अलैहिस्सलाम की करवाई है, बताया कि वाकई वो अल्लाह के नबी थे। फिर आपको ये भी मालूम है कि जो आदमी इस्लाह करने वाला होता है, आप उसको कितना ज्यादा रिगार्ड देते हैं। जो आपकी इस्लाह करता है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो हकीम है, चाहे वो कोई मिस्त्री है, कोई ठेकेदार है, जो आपके घर की इस्लाह करता है, तो आप उसका रिगार्ड करते हैं कि नहीं करते? इज्जत करते हैं उसकी कि नहीं करते? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहाँ फरमाया है कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जो यहूदी बने, जो ईसाई बने, जो साफी बने,
जो शख्स भी ईमान लाएगा अल्लाह पर, यौम आखिर पर, वो आमिला सालिह नेकी के अमल करेगा तो फलाहु अजरुहु इंद रब्बी, तो उसका अजर उसके रब के पास है। फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उस पर ना खौफ होगा ना वो गमगीन होगा। अच्छा, बस आज का सबक इतना ही है इंशाल्लाह।